Hello students, how are you today? So today we are going to revise the next chapter, that is magnetic effect of current. Okay, so we have today revision video lectures on magnetic effect of current. So बेटे second chapters की अब हम करेंगे revisions, okay, in detail. And the topics that I am going to cover in this lecture is what is the magnetic field, what is the magnetic field lines and their properties. Then after, what is the magnetic field due to straight conductor, circular loop, and for the case of solenoid, so we have three applications in which we will find the effects of magnetic field due to straight conductor, circular loop, and for solenoid. The next part is what is the right hand thumb rule, Fleming left hand rule, Fleming right hand rules. Okay, then what is the electromagnetic induction, what are the Faraday's laws, and what is the इलेक्ट्रिक मोटर्स. तो ये एंड इट्स प्रिंसिपल डायग्राम, इसके कंपोनेंट, फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट, ओके, एंड ऑन व्हाट फैक्टर द फोर्स आल्सो डिपेंड्स, ओके, व्हेनेवर करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. तो ये सारे का सारे टॉपिक है जो आज हम इस वीडियो लेक्चर्स में कवर अप करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट पार्ट. द फर्स्ट पार्ट इज मैग्नेटिक फील्ड. What is magnetic field? The magnetic field is that the effect of magnetism can be experienced around a magnet, and that region around a magnet is known as magnetic field. हमारे पास magnetic field क्या होता है बेटे? We know that we have north and south pole. We have north and south pole of the magnet. For the case of north side, so from the north side, from the north pole, magnetic field line will comes out. ठीक है? And this is the directions of magnetic field lines. And this line will enter to the south pole. So this is the directions of magnetic field lines. So magnetic field lines को हम ऐसे भी represent कर सकते हैं बेटे. And this region हम बोलेंगे region, a small region, a region around a magnet, okay, where we can experience magnetism, mean magnetic effect is known as magnetic field. तो magnetic field clear हुआ. magnetic field क्या होता है? magnet के around का जितना भी region हो where we can experience a magnetism is called magnetic field. You can draw this diagram and draw this magnetic field lines. And magnetic field line will originate from north pole and end at point south pole. Okay, buddy? So this is the first topic. Second point is that what is the magnetic field line? Second topic is magnetic field lines. So what are the magnetic field lines? The magnetic field line are the lines which originate from north pole and end at the south pole. Okay, and whose direction is always perpendicular to the surface of magnet. तो surface इस magnet के perpendicular directions में इसका surface होगा बेटे. And these field lines are closed loop. बस then after we will study their properties. So what are the magnetic field lines? Magnetic field lines are those lines which originate from north pole and end at south pole and whose direction is perpendicular to the surface of the magnet. तो यहाँ पर भी ये सरफेस के परपेंडिकुलर जाएंगे और इसका जो एंड होगा दैट इज आल्सो, है ना? ओके, सो दिस फील्ड लाइंस इज आल्सो ए क्लोज्ड लूप लाइंस. सो लेट्स स्टडी नेक्स्ट पार्ट देयर प्रॉपर्टीज. सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की अब हम स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज. तो वी हैव गिवन आई थिंक 5-6 प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. सो लेट्स स्टार्ट द प्रॉपर्टी नंबर 1. The first property is that magnetic field lines are closed loop. Closed loop है, starting from north, it start from north and at south, and inside the magnet it moves from south to north. Magnet के अंदर ये move करती है south to north, और magnet के बाहर move करती है from north to south. So it form a closed loop. तो ये एक closed loop बनाती है बेटे. This is the first application. Second application is that the strength of magnetic field
Strength of magnetic field is large, okay, is strong near the magnet, and strength of magnetic field is poor when you go away to this magnet. तो मैग्नेट के पास जाएंगे और द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नियर द पोल इज मैक्सिमम। तो ये जो पोल्स होंगे इसके नॉर्थ एंड साउथ पोल, वहां पर इसकी जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी क्या होगी, ज्यादा। and as you moves away from these poles the magnetic field strength is decreases, okay। And third property is that these field lines are never intersect each other. These magnetic field lines are never intersect with each other. Why? Because these field lines have a different path and directions. If these field lines are intersect at any point, it means that the field lines have two different directions, which is not possible. तो अगर फील्ड लाइन की अपना अपना लूप बनाएगा, अगर वो उसने किसी दूसरी फील्ड के लाइन के साथ इंटरसेक्ट किया मतलब टकराई, then it means that the field line have two different direction। तो इसकी अलग अलग दो डिफरेंट डायरेक्शन होगी, which is not possible। एक ही फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं होगी, उसकी एक ही होगी, तो वो अपनी सर्कल अपने लूप में ही वो मूव करेगा, ओके। सो यू हैव आल्सो गिवन दो चार मैंने करवाई है, दो चार आप और देख लीजिए, ठीक है। यू हैव गिवन मैग्नेटिक फील्ड्स प्रॉपर्टीज। इट विल स्टार्ट ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ एंड एट साउथ पोल। और क्या होगा, स्ट्रेंथ का भी हो गया। So this is these are the properties of magnetic field lines. So next study what we have, magnetic field due to straight conductors. So for the study of magnetic field due to straight conductor, for example, let's we have here a straight conductor through which the current is I is flowing. Suppose a straight conductor through which the current is I is flowing. Then after around this one you can draw this one, ठीक है। a plank of wooden plank is there, हम इसको dash 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 की फॉर्म में लिखेंगे, okay। then around a current magnetic field is set up. So if the direction of current is upward, the directions of magnetic field is anti-clockwise directions. So 1 2 3 4 and 5। So डायरेक्शन कैसी होगी बेटे इसकी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस होगी। So directions of magnetic field, what is this? This is called magnetic field. We call it is magnetic field, and this is the I for current. So this is the diagrammatical representation of formation of magnetic field due to करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। तो हमारे पास करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर कौन सा है, x and y। let x and y is the straight conductor through which the current I is flowing, then around the current carrying conductor magnetic field is set up, ठीक है। तो if the current move upward direction, magnetic field का direction is anti-clockwise direction। If the current move downward direction, then the direction of magnetic field is clockwise directions, ठीक है। तो ये दोनों बातें आपने याद रखनी है। That is whenever the current move upward direction, magnetic field का direction कैसा होगा, anti-clockwise। When current move downward direction, then directions of magnetic field is clockwise, okay। Number 2, strength of magnetic field। इसमें जो हमने properties लिखनी है वो भी लिखनी है बेटे, कौन सी, strength of magnetic field is directly proportional to current। जितना इसमें magnetic field कितना होगा, तो हम बोलेंगे magnetic field को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, B वेक्टर के साथ। B वेक्टर रिप्रेजेंट क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जैसे करंट को हम I के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को B वेक्टर के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। सो B कितना होगा, जितना उसमें कितना फ्लो करेगा I, जितना करंट होगा उतना ही उसमें क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड। नंबर 2, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। जितना डिस्टेंस इंक्रीज होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, रिड्यूस होगा, ठीक है। तो इसमें हम और भी स्टडी करेंगे। लाइक दैट वी हैव हियर, इसकी जो वैल्यूज होगी बेटे, ओके। So these are the factor on which we depends, okay।
So these are two factors on which the strength of magnetic field depends. If current will more, then magnetic field more. If अगर हम करंट कैरिंग वायर से दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, और करंट कैरिंग वायर के पास जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी. So these are two factors on which the strength of magnetic field depend for current carrying straight conductors. Okay, तो ये था हमारा टॉपिक करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर्स. अब हम स्टडी करेंगे सेकंड पार्ट, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप. तो सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप. तो हम स्टडी करेंगे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू द सर्कुलर लूप. ओके, सो this is my second topic for magnetic field due to current carrying, magnetic field due to circular loop. अब हम देखेंगे बेटे, consider we have a circular loop. Circular loop कहाँ से है बेटे, देखिए this is positive terminal, negative terminal of the battery. So current will start flowing from the positive terminal and it will goes from this one loop. Okay, so it enters, ये हमने simply इसमें एक base ले लिया है, ठीक है, wooden plank we have placed here, through which one and second one wire, so that a wire जो होगी वो इस plank के अंदर से क्रॉस होके हुए निकल रही है और दूसरे planks में एंटर हो रही है. So current is moving from, current का डायरेक्शन कैसा है बेटे, करंट का डायरेक्शन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस. If the current, okay, now you will produce, you will say that if the current is moving in this one side, direction of current बताइए कैसी है, डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपवर्ड. जब करंट अपवर्ड को मूव करेगा तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन की होगी, वो डायरेक्शन बताइए कैसी होगी बेटे. व्हेन करंट मूव अपवर्ड देन डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस. तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस. तो हियर द डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस. Number 2, in the second part the current is moving downward direction. If downward direction, then directions of magnetic field is clockwise direction. If it is clockwise direction, means like this. Okay, okay, so this is the directions of magnetic field due to the current, due to the circular loop of current carrying circular loop. तो करंट कौन कैरी कर रहा है, सर्कुलर लूप, उसके कारण हमारे पास दो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएंगे एट लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड. इन राइट हैंड साइड we have the current that is moving in the upward direction, so magnetic field will produce in anti-clockwise direction. In the left hand side current moves downward direction and magnetic field produce in clockwise direction. So this is the diagrammatically representations of a magnetic field due to a current carrying circular wire. Okay, इसमें भी बेटे आपने दो फैक्टर डिपेंड कौन से करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन व्हाट फैक्टर. सो अगेन वी हैव द सेम टू फैक्टर्स, आपने ये दोनों फैक्टर लिख देने साथ में. सो मैग्नेटिक फील्ड जितनी भी इसमें प्रोड्यूस होगी एट पॉइंट ए और बी, इसको आप नाम भी दे सकते हो पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. ओके, हियर यू विल नोटिस दैट अगर इनका मैग्नेटिक फील्ड और इंक्रीज करें मींस, and here is also you will notice that yes, तो आप देखेंगे कि इसका मैग्नेटिक फील्ड भी अराउंड दिस है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड आल्सो अराउंड दिस. सो द डायरेक्शन जो दोनों पोल्स के ए बी के बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट होगा उसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन, जैसे देखिए ये वाली. So this is the directions of B. B क्या रिप्रेजेंट करता है, directions of magnetic field lines, magnetic field. So magnetic field इसमें और क्या आएगा, पॉइंट पहला, सेकंड और थर्ड. हम लिखेंगे magnetic field between two points A and B is a straight line. Okay. So this is the graphical representation of magnetic field due to a current carrying circular loop. Next हम स्टडी करेंगे that is magnetic field due to a solenoid. तो बेटे solenoid का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में अक्सर आ जाता है. So we will study this one. All topics are very important. All topics are very important and we will cover one by one each. In case of solenoid, in case of first of all you will draw 1 and 2
then after number of turns, okay, current is moving along this one directions, and here it is positive, it is K, and this one is battery. Battery positive terminal, current is moving along this one directions and comes out from this one directions. So what is the solenoid? Solenoid is a special type of device which consists numbers of turns whose diameter is very less as compared to its length, okay, and through which wire of number of turn is wound that produce magnetic field through this diameter and set up, and it behave as a magnet. With it behave as a magnet having two poles. तो मैग्नेट के कितने पोल्स होते हैं बेटे? टू पोल्स. ऐसे ही सोलेनॉइड में भी कितने पोल बन जाएंगे? दो पोल्स बनेंगे, टू पोल्स बनेंगे यहाँ पर भी. अब हमने यहाँ पे स्टडी करना है. इफ द करंट इज मूविंग क्लॉकवाइज, यहाँ से देखिए करंट जाएगा और करंट पीछे से जाके ऐसे मुड़ा, तो करंट का डायरेक्शन कैसा है? क्लॉकवाइज. अगर डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा होगा? क्लॉकवाइज, तो हमें वो कौन सा पोल मिलेगा यहाँ पर? साउथ पोल. याद रखिए. So this represents south pole, this represents north pole. तो हमें कैसे पता चलता है कि यहाँ पर नॉर्थ पोल है या यहाँ पर साउथ पोल है? तो इसका सिंपल सा मेथड है बेटे, देखिए. कंसिडर वी हैव ए लूप, ठीक है. इन दिस लूप इफ द करंट इज मूविंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा तो ये जो फेस होगा, फेस ऑफ द लूप विल गिव अस साउथ पोल, और इस फेस के बैकवर्ड डायरेक्शन किसकी होगी? नॉर्थ की. अगर हमारे पास करंट कैसे मूव कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये हमें जो फेस होगा लूप का वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? इट विल गिव अस नॉर्थ पोल, और इस फेस के बैकवर्ड साइड पे कौन सा फेस होगा? साउथ पोल. तो सिंपल याद रखिए कि डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज है तो वो हमें कौन सा पोल देगा? साउथ पोल. यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है ऐसे, करंट इज मूविंग फ्रॉम दिस वन, तो करंट ऐसे जा रहा है. सो अगर मैं यहाँ से खड़े होकर देखूं तो ये ऐसे, तो डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा है? क्लॉकवाइज. अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये मुझे कौन सा पोल देगा? साउथ. ये साउथ है तो वो ऑटोमेटिकली कौन सा होगा? नॉर्थ पोल. सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से जाएंगे? फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. सो दिस इज द magnetic fields lines. This is the magnetic field lines. Okay, so magnetic field lines, so you have to draw this solenoid as it is. इसमें solenoid का बैटरी भी लगाएंगे, केस भी लगाएंगे, करंट का डायरेक्शन भी बताएंगे और उसके पोल्स भी लिखेंगे. मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेट के पोल्स भी लिखेंगे solenoid के केस में, and direction of current, and here magnetic field की डायरेक्शन भी बताएंगे. This is the north pole, so this is the directions of magnetic field lines. तो magnetic field lines है ये भी. So this is the directions of magnetic field lines. तो इसके अंदर करेंगे सब डायरेक्शन, ठीक है. So this is the representation part of solenoid. Okay, that whenever current is passing through the solenoid behave as a electromagnet. Okay, अब ये एक और क्वेश्चन है बेटे जो अक्सर एग्जाम में आ जाता है, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड द परमानेंट मैग्नेट. तो इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में क्या क्या डिफरेंस है? देखिए, दिस इज आवर इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड दिस इज आवर परमानेंट मैग्नेट्स. तो ये पोल्स भी आगे समझ हो गए बेटे आपको. ओके, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, सो दिस इज द पार्ट. ओके, दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट, यहाँ पे हम बोलेंगे कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज. अगर इसमें करंट इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी वो इंक्रीज होगी, करंट डिक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? डिक्रीज. बट इन केस ऑफ परमानेंट मैग्नेट स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट बी चेंज. जितनी है उतनी रहेगी, ना हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं ना इसको डिक्रीज कर सकते हैं. बट strength of electromagnet can be increased or by decreased by increasing or decreasing the value of current. Number 2 point, the poles of magnet, the poles of
इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी चेंज। तो ये पोल्स कौन से होंगे, नॉर्थ और साउथ पोल, इसको चेंज कर सकते हैं बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर करंट यहां से मूव करेगा तो ये साउथ पोल है। अगर करंट का पोल, अगर बैटरी के टर्मिनल चेंज कर दूं, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, तो करंट यहाँ से मूव करेगा तो वो बन जाएगा साउथ और ये बन जाएगा नॉर्थ। सो बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, पोल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी चेंज, एंड इन दिस केस द पोल्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट कैन नॉट बी चेंज। तो जो इसके पोल सेटअप हो गए वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ सकता। थर्ड पार्ट होगा okay, so these are the true part, and third part you can write the diagram part. This is the diagram part किसका, this is diagram of electromagnet, this is diagram of permanent magnet। और चौथा भी पॉइंट लिखना हो तो आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। व्हाट इज द सोलेनॉइड, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट इज द स्पेशल डिवाइस थ्रू व्हिच द इलेक्ट्रिक करंट इज पास, मैग्नेटिक फील्ड इज सेट अप अक्रॉस इट्स टू एंड दैट बिहेव सो दैट इट बिहेव एज a magnet having two poles। इसमें लिखेंगे no current is required, it is a permanent magnet, like lodestone is example of permanent magnet, it have naturally two poles, that is north and south pole, and fixed value of magnetic field। okay, so ये वाला क्वेश्चन भी आपको कवर अप करवा दिया है। और क्या करेंगे, ओके ये पार्ट हमारा सारा कुछ फिनिश हो गया। नेक्स्ट हम करेंगे राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल मैंने काफी बार करवाया है। सिंपली बात याद रखिए, इफ वी होल्ड करंट कैरी कंडक्टर इन अवर राइट हैंड, अगर ये मार्कर क्या है, करंट कैरी कंडक्टर है, इफ आई होल्ड करंट कैरी कंडक्टर इन माय राइट हैंड, देन thumb will give the direction of electric current, then the direction in which the fingers are curled, the direction in which the fingers are curled give the direction of magnetic field। clear? So हम इसे बोलेंगे if we hold मतलब पकड़ना, if we hold the current carrying conductor in our right hand, then thumb show the direction of current and the direction in which fingers are curled give the direction of magnetic field। So this is right hand thumb rule। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो बेटे फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है वो भी बहुत आसान है। अब फ्लेमिंग है तो इसका है लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड है, तो ये क्या हुआ, दिस इज लेफ्ट। तो हमने सिंपली क्या करना है, इफ वी स्ट्रेच, इसमें हमने थंब, फोर फिंगर और ये है सेंटर फिंगर, ठीक है। तो हमने इसको ऐसे करना है, दो उंगलियों को बेंड कर लिया, बाकी ये तीन बच गए, तीनों को ऐसे स्ट्रेच कर लो। स्ट्रेच मतलब अकड़ा लो, ठीक है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब हम बताना है इफ वी स्ट्रेच अवर लेफ्ट हैंड थंब, फोर फिंगर, सेंटर फिंगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन thumb will give the direction of current, forefinger gives the direction of magnetic field and the central finger will give the direction of force। तो तीन फैक्टर है, तीनों के नाम दे दो, एक करंट, मैग्नेटिक फील्ड और तीसरा फोर्स। तो करंट, मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगेन व्हाट इज द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इफ वी स्ट्रेच अवर लेफ्ट हैंड थंब, forefinger and central finger mutually perpendicular to each other, then thumb will give the direction of current, forefinger will give the direction of magnetic field and the central finger will give the direction of force। This is called Fleming left hand rule। ठीक है बेटे, एक और रूल्स होता है जिसको हम बोलते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अब दोनों में फर्क है जो आपने याद रखना है। एक सिंपल राइट हैंड थंब रूल है, उसमें थंब यूज आ गया और उसमें फ्लेमिंग भी नहीं लिखा। तो ये जो हमारे पास होता है राइट हैंड थंब रूल इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल किसके लिए, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। So let's start now Fleming right hand rule। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल हमें बताएगा थ्री पार्ट, कौन से, करंट, मैग्नेटिक फील्ड और मोशन, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स। ठीक है, मतलब कोई पार्टिकल है, अगर उसकी कोई वेलोसिटी है और वो पार्टिकल मूव कर रहा है किसमें, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो वहां पर भी क्या एक्सपीरियंस करेगा, वो फोर्स। ठीक है,
तो हमारे पास इसमें कौन से पार्ट आ गए, करंट, मैग्नेटिक फील्ड एंड मोशन। ठीक है, तो हम इसमें क्या बताएंगे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में बताएंगे बेटे। देखिए, if we stretch our right hand thumb, forefinger and central finger mutually perpendicular to each other, then thumb will give the direction of current, forefinger will give the direction of magnetic field and the central finger will give the direction of motion of conductor। ये क्या कौन सा पार्ट बताएगा, मोशन ऑफ कंडक्टर। तो इसकी मोशंस होगा। तो राइट हैंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में हम बताते थे फोर्स वाला पार्ट, और राइट हैंड साइड में हम किसका बताएंगे, मोशन ऑफ कंडक्टर। दोनों में इतना ही फर्क है। ओके, सो ये दोनों रूल्स आपको हो गए। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को हम बोलते हैं दैट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर। एक्चुअल में क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम स्टडी करते हैं फैराडेज के टू लॉ। तो फैराडेज के टू लॉज हम स्टडी करेंगे, तो हम बोलेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड whenever changing magnetic flux take place। okay, so let's start electromagnetic inductions में हम पढ़ेंगे सबसे पहले that is what we have here electromagnetic induction। तो electromagnetic inductions के हमारे पास है टू लॉज, और उन्हीं टू लॉज को हमने नाम दे दिया फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड फैराडे सेकंड लॉ। तो हम स्टडी करेंगे फर्स्ट पार्ट हमारा पास है फैराडेज फर्स्ट लॉ। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ हमें क्या बताएगा, फैराडे का फर्स्ट लॉ हमें बताता है बेटे मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस। ओके, फैराडे का फर्स्ट लॉ बताएगा कि सपोज वी हैव हियर ए लूप दैट कंसिस्ट ए galvanometer, this is south, this is north, so current will produce along this one directions। okay, so it will shows the directions of north and south। okay, so this is the directions of current। अब होता है क्या बेटे, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ फैराडे फर्स्ट लॉ। फैराडे फर्स्ट लॉ में हम क्या स्टडी करते हैं बेटे, देखिए फैराडे ने स्टडी किया कि जब हम एक किसी मैग्नेट को किसी क्लोज्ड लूप के अंदर पास करवाते हैं, ठीक है, दिस इज मैग्नेट एंड दिस इज क्लोज्ड लूप। तो उसने देखा कि मैग्नेट को जैसे ही हम किसी क्लोज्ड लूप के अंदर प्लेस करते हैं, देन इसका जो मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं उसको बोल देते हैं हम फ्लक्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या नाम दे दिया, फ्लक्स। तो जैसे ही फ्लक्स को इसके सर्कुलर लूप के अंदर क्रॉस करते हैं, तो बेटे मैग्नेटिक फील्ड से क्या प्रोड्यूस होगा, स्मॉल इंड्यूस्ड करंट। मैग्नेटिक फील्ड से क्या प्रोड्यूस होगा, स्मॉल इंड्यूस्ड करंट। और वही करंट जब इसमें प्रोड्यूस होगा तो वो गैल्वेनोमीटर में जाएगा, और गैल्वेनोमीटर गिव द डिफ्लेक्शन। तो इसकी डिफ्लेक्शन किस तरफ होगी, डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इज अराउंड दिस वन डायरेक्शन। तो ये देता है कि करंट इस तरफ है। अब जैसे ही हम इस मैग्नेट को इससे अवे दूर लेके जाते हैं, तो इसकी करंट की डायरेक्शन चेंजेस हो जाती है। डायरेक्शन कैसे हो जाती है, रिवर्स। पहले करंट कैसे थे, क्लॉकवाइज। अगर ये मैग्नेट पीछे की जाएगा तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये वाला। तो फिर ये गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन कैसे शो करता है, ऑपोजिट डायरेक्शंस। तो इसको पता चला कि देखिए जब तक इसका मैग्नेट विद रिस्पेक्ट टू कॉइल का मोशन चेंज होता है, जब तक ये मैग्नेट क्या होती है, मोशन में, तब तक इसमें क्या प्रोड्यूस होता है, स्मॉल इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, और इसी को उसने फैराडेज का फर्स्ट लॉ का नाम दे दिया। एंड व्हाट इज द फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे फर्स्ट लॉ इज दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन ए कॉइल as long as there is change in the magnetic flux। ठीक है, जब तक इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें चेंज होगा, उतनी देर तक इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा इन द सर्कुलर कॉइल। ठीक है, दोबारा मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ।
induced EMF produced in a coil is as long as there is change in the magnetic flux. ठीक है, तो जब तक इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस आएगा तब तक इसमें क्या पैदा होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ. दिस इज कॉल्ड फैराडेज फर्स्ट लॉ. नंबर सेकंड, फैराडे सेकंड लॉ ने हमें दिया, फैराडे सेकंड लॉ इज नोन एज इंड्यूस्ड ईएमएफ. E induced EMF is equal to minus d phi over dt. This is the mathematical representations of Faraday's second law. तो Faraday's second law का mathematical representation होता है बेटे E. E ने represent किया E for induced EMF. It is produced due to the changing magnetic flux with respect to time. तो phi क्या है, phi है यहाँ पर magnetic flux. phi क्या होता है, magnetic flux. So phi is the magnetic flux. जब magnetic flux टाइम के साथ होगा चेंज, मतलब अगर इस फ्लक्स को मैं और ज्यादा फास्ट कर दूं, मैग्नेट को जितना फास्ट करूंगा उतना ज्यादा क्या होगा, करंट. देखिए, जितना टाइम कम लगेगा उतना फील्ड ज्यादा, जितना टाइम ज्यादा उतना फील्ड कम. मतलब अगर मैं किसी मैग्नेट को स्लो मोशंस में लेके आता हूं, ठीक है, तो यहाँ पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा उसकी वैल्यू बहुत कम होगी. और अगर इसकी मैग्नेट को बहुत तेज हम रखेंगे तो उसमें टाइम कम होगा. टाइम कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ फिर ज्यादा होगा. ठीक है, तो हमारे पास ये था फैराडेज लॉज, जिसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस. तो इसमें क्या होता है बेटे, ये पार्ट समझिए. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड. दोनों को ऐड करो तो क्या बनेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट. शॉर्ट फॉर्म में ले लिया. इंडक्शन का मतलब होता है विदाउट टचिंग, बिना टच किए अगर हम इंड्यूस्ड ईएमएफ को प्रोड्यूस कर रहे हैं बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स, सो दैट दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ठीक है, तो हमारे पास जो होता था ना एसी जनरेटर, AC generator is work on the principle of electromagnetic induction. तो वो उसका एक्चुअल में प्रिंसिपल कौन सा था, उसका प्रिंसिपल था AC जनरेटर का ये वाला. और इसी लॉ को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसको कहते हैं, फैराडेज के फर्स्ट और सेकंड लॉज को. मतलब उसमें जब जनरेटर चलता है तो जब आपने देखा होगा जनरेटर बहुत हाई स्पीड से मूव करता है रोटेटर को. तो अगर उसकी स्पीड ज्यादा होगी तो वो क्या पैदा करेगा, ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड उस कॉइल को रोटेट करते हैं. वहां पर मैग्नेट को नहीं रोटेट करते, मैग्नेट परमानेंट होते हैं, लेकिन उसके अंदर जो कॉइल होती है ये वाली, इस कॉइल को वो लगातार रोटेट करवाते हैं. लाइक दिस कॉइल इज लाइक ए रेक्टेंगुलर कॉइल. तो आपको पता ही है उसका फील्ड का डायरेक्शन कैसा होता है बेटे उसमें. सो दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ये फॉर्मूला बेटे, इसको नोट डाउन कर लेना, आपकी बुक में भी नहीं मिलेगा आपको ये वाला फॉर्मूला. सो phi इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, इट इज चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. नेगेटिव साइन इसलिए है क्योंकि जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा उसका डायरेक्शन ऑपोजिट होगा टू द मोशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ. हमने देखा था जब ये नॉर्थ पोल उधर जाता है तो मैग्नेटिक गैल्वेनोमीटर इस तरफ डायरेक्शन, अगर वो दूर जाएगा तो वो ऑपोजिट. तो ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए इसका साइन आता है नेगेटिव. ओके, सो लास्ट पार्ट वी हैव हियर इलेक्ट्रिक मोटर. तो इलेक्ट्रिक मोटर आपने सबने पढ़ा है. इलेक्ट्रिक मोटर में सिंपल आपने एक नॉर्थ पोल बनाएंगे, एक बनाएंगे रेक्टेंगुलर कॉइल, ओके, एक बनाएंगे यहाँ पर स्लिप रिंग लाइक दिस वन, and here is also this is the brushes, load resistance. ठीक है, so this is part here A, B, C or D. This is north and this is south. Magnetic field will produce and as it is rotated, because इसमें क्या होगा बेटे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन विल पास फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. तो यहाँ पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा
और अगर हम यहाँ पर करंट को फ्लो करवाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड और करंट होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, फोर्स। तो उसी फोर्स से ये जो कॉइल होगी वो क्या करेगी, इट विल रोटेट। ओके, it will rotate whenever the direction of current is along this one directions. तो करंट ऐसा होगा, this part will move this one, this is the force, this will move downward, this is also the force. तो ये फोर्स मूव करेगी बेटे, ऑटोमेटिकली फोर्स विल प्रोड्यूस। तो वो फोर्स प्रोड्यूस होगी जिसके कारण ये मैग्नेटिक जो कॉइल है दैट विल रोटेट। तो जितनी भी आपके पास इलेक्ट्रिक मोटर है, आपने देखा होगा जैसे ही आप उस पर करंट को पास करवाते हो तो उसमें मोशनल आ जाता है, क्योंकि वो मोटर है तो इट विल रोटेट। व्हाई इट इज रोटेट, बिकॉज द फोर्स इज प्रोड्यूस। दिस फोर्स विल प्रोड्यूस व्हेनेवर मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग दिस वन डायरेक्शन बी, करंट इज अलोंग दिस वन डायरेक्शन। तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एक फोर्स प्रोड्यूस होगी, जिसको हम कैसे स्टडी करते थे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के साथ। ठीक है, तो ये थी फोर्स। तो ये मूव करेगी अपवर्ड, ये डाउनवर्ड, तो ये ऐसे ऐसे मूव करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये जो इसके दिस इज कॉल्ड स्प्लिट रिंग, दिस वन इज brushes B1 B2, this one is a resistor, mean what do we have our resistors, और we resistor नहीं, यहाँ पे बैटरी आ जाएगी। ओके, the battery through which the we have given a current, पॉजिटिव है तो this is the value of current, तो करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, and current will enter from this one point, so this is the our electric motor। तो बेटे इसके आगे हम इसमें एक और न्यूमेरिकल्स करेंगे। एक आपके पास क्वेश्चन था फॉर एग्जांपल मोशनल इफेक्ट। तो अगर आपके पास कोई न्यूमेरिकल आ जाए जिसमें उसकी वैल्यू हो चार्ज पार्टिकल हैविंग 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 3 into 10⁻6 मीटर पर सेकंड, तो हमने अगर फोर्स कोई भी वैल्यू फोर्स की फाइंड करनी हो कि किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड, उसकी वेलोसिटी और उसमें करंट का वैल्यू भी गिवन है। ठीक है, चार्ज करंट भी, तो हम इसका फोर्स का फॉर्मूला यूज करेंगे, F is equal to B Q V। This is the formula that we will use to find the value of force। जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को मूव करवाते हैं with certain velocity in a uniform magnetic field, then it will experience a force। तो वो फोर्स का फॉर्मूला हम कौन सा लगाएंगे, F is equal to B Q V। आपको 3 वैल्यूज गिवन होगी, आपने 3 वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर देना एंड दिस इज इक्वल टू द फोर्स। ठीक है, सो दिस इज द रिवीजन वीडियो लेक्चर ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो बेटे ये सारे टॉपिक आप अच्छे से कीजिए। स्टिल यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टेक्ट